مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار پھر گرم. قابض بھارتی فوج نے سری نگر میں 45 سالہ خاتون سمیت مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا. علاقے میں انٹرنیٹ سروس معطل. سرچ آپریشن کی آڑ میں پکڑ دھکڑ جاری. خاتون سے زیادتی کا کیس. عابد کو پکڑنے میں ایک بار پھر ناکامی. قصور کے علاقے راؤ خان والا میں مرکزی ملزم کی موجودگی کی اطلاع پر ایکشن. 5 رشتہ دار زیر حراست. آپریشن میں 1200 اہلکاروں کی شرکت. موٹر وے زیادتی کیس. گرفتار ملزم شفقت سے تفتیش جاری. خود پیش ہونے والے وقار کی رہائی کے لیے ڈی این اے رپورٹ آنے کا انتظار. متاثرہ خاتون کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پولیس کی کوششیں. وزیر اعظم کا آج ہری پور جانے کا پروگرام. وفاقی وزراء بھی عمران خان کے ساتھ ہوں گے. یونیورسٹی کا افتتاح بھی شیڈیول میں شامل. So member rose in favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted. جی حکومت اہم ترین قانون سازی میں کامیاب. اپوزیشن کا احتجاج. پارلیمنٹ سے اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل منظور. تمام ترامیم مسترد ہونے اور فلور نہ ملنے پر حزب اختلاف کا مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ. انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے. پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہا پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر. پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح وہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں. اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ہمارے سے کہیں ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں. قانون سازی پر اپوزیشن نے بلیک میل کیا. اپوزیشن رہنماؤں کے مفادات قومی مفادات کے برعکس. یہ صرف اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں. منی لانڈرنگ نہیں کی تو پھر ڈر کیوں رہے ہیں؟ وزیر اعظم کا سوال. کوئی NRO نہیں چاہتے. ملک کے لیے بات کر رہے ہیں. ہماری ترامیم جنون تھیں. باہمی مشاورت سے اگلا فیصلہ کریں گے. شہباز شریف کی گفتگو. قانون سازی غیر آئینی طریقے سے کی گئی. بلاول بھٹو زرداری کا الزام. آرمی چیف کی گوجرانوالہ آمد. براق کامبیٹ اسکل ٹریننگ کمپلیکس کا افتتاح. سپہ سالار کو سینٹرل کمانڈ فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ. شاندار عملی مظاہرہ. کورونا سے 6 افراد جان سے گئے. اب تک 6399 اموات. مہلک وائرس سے 3,03,634 شہری متاثر. 24 گھنٹے کے دوران 545 نئے مریض. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 6066 رہ گئی. پشاور کے بعد کراچی میں بھی تدریسی عملہ کورونا کا شکار. ڈسٹرکٹ موٹیاری کے 2 کالجز میں 8 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق. دونوں تعلیمی اداروں کو فوری طور پر بند کر دیا. سعید غنی کا ٹویٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش بٹ. میں ہوں مریم ذیشان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد. اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کا ظلم و ستم جاری ہے. سری نگر میں 45 سالہ خاتون سمیت مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج جاری ہے. سرچ آپریشن کی آڑ میں پکڑ دھکڑ. انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی. کشمیریوں کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. مقبوضہ
कश्मीर में भारतीय जारहियत एक बार फिर से जारी है। जुल्म और सितम का सिलसिला भी जारी और सारी है। श्रीनगर में 45 साल खातून समेत मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं, जबकि सर्च ऑपरेशन की आड़ में भी भारतीय फौज पकड़ धकड़ में मसरूफ है, जबकि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। जिंदगी तंग कर दी गई है कश्मीरियों पर। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज का जुल्म सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीनगर में 45 साल खातून को शहीद किया गया और इस खातून समेत मजीद 4 कश्मीरी भी शहीद कर दिए गए। लाहौर में ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद गिरफ्तार ना हो सका। 1200 पुलिस एहलकार ने गिरफ्तारी के लिए कसूर में सर्च ऑपरेशन किया और आबिद के 5 करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब मुलजिम शफकत से जेल में तफ्तीश जारी है। 2 दिन गुजर गए, लाहौर ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम न पकड़ा जा सका। छापे और तमाम जदीद तरीके किसी काम न आ सके। रोड के करीब वाक़ नवाई गांव राव खान वाला में लाहौर पुलिस, CTD, CIA और कसूर पुलिस की भारी नफरी ने मुलजिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए 2 किलोमीटर के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। मरकजी मुलजिम तो हाथ न आया, लेकिन पुलिस ने आबिद से मुसलसल राब्ते में रहने वाले उसके 2 कजन, 1 खातून और 2 दीगर रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये का कहना है कि 2 रोज कबल इन तमाम अफराद का आबिद अली से राब्ता हुआ था। जेर हिरासत अफराद को कसूर से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ गिरफ्तार मुलजिम शफकत से जेल में तफ्तीश जारी है। मुलजिम वक़ार की DNA रिपोर्ट आने के बाद ही उसे रिहा करने से मुताल्लिक हतमी फैसला होगा। अदालतें तब्दील हुई, कभी गवाह मुनहरिफ हुए। बदकिस्मत घरानों को 8 साल इंतजार करना पड़ा। 8 साल कबल कराची की बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा जल जाने वाले 262 बेगुनाहों के कत्ल के मुकदमे का फैसला आज मुतवक्के है। मुकदमे में दौरान समाअत कब क्या हुआ, तफसीली तौर पर रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली राना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जापान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म योशी हाइड को मुबारकबाद दी है। जापान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म हूँ, इमरान खान की जानिब से कहा गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जापान दोस्ती और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं अपने ट्विटर पैगाम के जरिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जापान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि जापान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। पाकिस्तान जापान दोस्ती और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो जापान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म योशी हाइड को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि जापान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। कराची से अहम खबर देंगे आपको, जहां मुटियारी में 2 कॉलेजेस के अमले के 8 अरकान में कोरोना की तशखीस हो गई। कोरोना केसेस आने के बाद दोनों कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सिंध का बताना है कि औरंगी टाउन में 2 प्राइमरी स्कूल खोलने पर एक्शन लिया गया, सील करने का हुक्म दिया गया है। सईद गनी ने स्कूल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद मॉनिटर भी किया है। फौरी तौर पर स्कूल्स के मालिकान और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा भी उनका कहना है। 2 रोज पहले ही स्कूल और कॉलेजेस को तदरीसी अमल के लिए 6 माह के अरसे के बाद दोबारा से खोला गया है। अब खबर ये आ रही है कराची से कि मटियारी में 2 कॉलेजेस के अमले की 8 अरकान में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सईद गनी ने तस्दीक की है। वो ये भी कहते हैं कि कोरोना केसेस आने के बाद दोनों कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। सईद गनी की स्कूल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की चेकिंग भी सामने आई, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि औरंगी टाउन में 2 प्राइमरी स्कूल्स खोलने पर एक्शन लिया गया है और उन्हें सील कर दिया गया। और कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने पर तालीमी इदारों के खिलाफ एक्शन जारी है। मुल्क भर में 48 घंटे के दौरान 22 तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। NCOC की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 1, आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारे हैं जिन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की थी और इन तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इस्मा शौकत। इस्मा, आगाह कीजिएगा, कहाँ कहाँ कितने स्कूल बंद हुए? जी बिल्कुल, NCOC का जो एक बड़ा ही अहम इक़दाम देखने में आ रहा है, जिसमें NCOC ने हिदायत जारी की थी कि जो स्कूल जो हैं SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के बायस NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 22 तालीमी इदारे जो है उनको बंद कर दिया गया है। ये तालीमी इदारे गुज़श्ता 41 SOPs पर अमल दरामद करने पर बंद किए गए हैं, जबकि कोरोना के हवाले से
एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने पर वबा तालीमी इदारों में फैलने का खदशा था। सबसे ज्यादा KPK में 16 तालीमी इदारे, आज़ाद कश्मीर में 5, इस्लामाबाद में 1 तालीमी इदारा जो है वो बंद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इस्मा, आपने अपडेट किया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे खुलने के बाद सरकारी स्कूलों के असातिज़ा कोरोना वायरस का शिकार होने लगे। असातिज़ा और तलबा ने SOPs पर सख्ती से अमल करने के अज़्म को दोहराते हुए तदरीसी अमल जारी रखने का फैसला कर लिया। असातिज़ा कहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकते। तफसीलात से आगाह करेंगे ज़ाकिरुल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे खुलने के बाद सरकारी स्कूलों के असातिज़ा कोरोना वायरस से मुतासर होने लगे। पेशावर और नौशहरा के 15 असातिज़ा में वायरस की तस्दीक हुई। पेशावर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 कैंट के 7 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद उन्हें घरों में करंटीन कर दिया गया। ताहम स्कूल में तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। कोरोना केसेस के बावजूद तलबा के हौसले बुलंद हैं। हमारे स्कूल के उस्ताद उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। हम अपने स्कूल की तालीम को जारी कोरोना को हम शिकस्त देंगे, हम अपनी तालीम को जारी रखेंगे। हम कल बाकायदे से स्कूल आ रहे हैं और हमारे पहले 7,000 से कोरोना से इफेक्टेड हो चुके हैं और हम SOPs पर फॉलो कर रहे हैं। स्कूल में तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले दीगर असातिज़ा भी तालीमी अमल जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। कहते हैं कोरोना वायरस के खदशात तो हैं, लेकिन सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकते। जो तालीमी वक्त ज़ाया हो चुका है, इसका मज़ीद जो है ज़िया ना हो और दूसरी सूरत हाल के हालात अगर बेहतर हो जाएँ तो हम उसके बाद भी स्कूल टाइमिंग के बाद भी 9, 10 चूँकि एग्ज़ाम बोर्ड का होता है तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करेंगे। 6 महीनों ने बच्चों की तालीम को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, बच्चों को तालीम से दूर रखा हुआ है। हम पुरअज़म हैं, हम इंशाअल्लाह इस कोरोना का भी मुकाबला करेंगे और हम अपने बच्चों को तालीमी याफ्ता बनाएंगे। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक मुतासरा असातिज़ा के कोरोना टेस्ट 1 हफ्ता कबल किए गए थे। तस्दीक के बाद उन्हें 15 दिन की छुट्टियों पर घर में करंटीन कर दिया गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां तालीमी इदारों में हिफाजती इक़दामात जारी हैं, तो वही असातिज़ा समेत तलबा का हौसला भी काबिल दीद हैं। कैमरामैन नासिर नईम के साथ ज़ाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।